March 1947, Earl Louis Mountbatten and his wife Edwina arrive in New Delhi. The great-grandson of Queen Victoria and second cousin to George VI, Mountbatten brings a regal presence to the drama of India's independence. As the last Viceroy, he bears responsibility for India's fate. 2nd of April, 1947. I have now completed my first week in office. I should like to be able to paint an encouraging picture of my first impressions, but feel it would be misleading if I did so. The scene here is one of unrelieved gloom. At this early stage, I can see little common ground on which to build any agreed solution for the future of India. The only conclusion I have been able to come to is that unless I act quickly, I may well find the real beginnings of a civil war on my hands. By May, attempts to create a unified India have failed. Gandhi retreats from political life. Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, and Jawaharlal Nehru of the Indian National Congress concede to divide India. Fearing a total loss of control, Mountbatten brings forward the transfer of power to August. Two nations will be created by partition, a secular India and a new homeland for India's Muslims, Pakistan. Nehru addresses the people of India. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The 15th of August, 1947, the British Empire in India has come to an end. The last Viceroy, Louis Mountbatten. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. Qasim Muhammad. On the 15th of August came freedom. The freedom to burn, loot and murder. While Delhi and Karachi were celebrating, central Punjab was burning. Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. Britons and Indians witness the bloodshed. Shahid Ahmed. It is a battleground. People have gone mad. Trains to Pakistan are being looted and occupants slaughtered. We all knew that carnage was in the offing. So did Mountbatten. The British Empire, which tried to build India over centuries, can never live down this great tragedy. Lieutenant Colonel Hubert Boyd Hudson. The sight from the air was awe-inspiring. In this chaos, millions of refugees were struggling to get to India or Pakistan. Thousands of others were doing their best to prevent them, murdering them by the hundred. But death is nothing. There are things more terrible than death. Ten million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. By the summer of 1948, most of the British have left.
Hubert Boyd Hudson has been in India for 15 years. India is full of ghosts. Houses I have lived in, now inhabited by Indians, remind me of the days which will never come again. When the Viceroy drove past with a cavalry escort in red coats, I have seen the greatness of the British in India, but now it is all ended, and we are the last to leave, the few who are trying to tidy up the mess which the sudden splitting of an old empire has caused. Britain has lost its greatest imperial possession. Mahatma Gandhi once said that if India became free, the rest of the empire would follow. In the next 10 years, the fire of India's independence will spread around the globe, from the Middle East to Africa. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल दिमागी कसरत। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है क्लास 10th के लिए। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर क्लास 10th के ही बच्चे पढ़ें, कोई भी आदमी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले ये पढ़ लीजिए, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन दैट। इसका मतलब हुआ कि अगर आप फेल हो जाए ना तो कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि फेल का अर्थ है सीखने से पहले प्रयास। इसको ये जो मतलब लाइन है इसको लिखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोट्स आपको पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल गया होगा, वहाँ पे मैंने इस वीडियो के मतलब इस नोट्स का लिंक डाल दिया था। हालांकि आपने जब इस वीडियो को ऑन किया होगा तो इंट्रो बड़ा ही लंबा हो गया होगा, इसके लिए सॉरी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नहीं लगा हो तो मत करना। चलो तो फिर पिछली वीडियो में हम लोग ये सारा टॉपिक पढ़ लिया था, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट स्वराज इन द प्लांटेशन। कुछ ऐसा ही टॉपिक था, कुछ ऐसे करके, है ना। ऊपर चला गया क्या? चलिए देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नीचे ही है, नीचे ही। काफ़ी पढ़ लिया था हम लोगों ने, आधे घंटे का वीडियो था। मेरे फ्रेंड सर ने बोला भाई तुमने आधे घंटे कैसे पढ़ा लिया, मतलब वो लोग क्या कह सकते हैं यार। हाँ, यहाँ से पढ़ाना है। मतलब टॉपिक आज का हमारा स्वराज इन द प्लांटेशंस। मतलब अब जो मतलब प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उनके अंदर स्वराज की भावना कैसे आई, मतलब देशभक्ति की भावना कैसे आई। अब है हमारा है, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम freedom means moving freely in and out and retaining a link with the village from which they had come। मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, जो असम में काम कर रहे थे यार, चाय के बागानों में। असम में मतलब मान लीजिए आप चाय का बागान ही होगा ना असम, तो वहाँ पे जब मतलब उन लोगों को पता नहीं, मतलब फ्रीडम का मतलब होता था फ्रीली घूमना, कहीं भी आ जा सकना। लेकिन वो एक बार प्लांटेशन वर्कर्स एक बार जब प्लांटेशन के लिए आ जाते थे ना, तो उन लोगों को अनुमति नहीं थी कि वो अपने घर जा सके। ओके, तो उनके उसके लिए उन लोगों को ना मतलब परमिशन लेना पड़ता था। उनके ऊपर एक एक्ट लगाया गया था जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, जो कि 1859 में लगाया गया था। ये एक्ट था कि कोई भी वर्कर्स अपना काम छोड़ के अपने घर नहीं जा सकता है। इसके खिलाफ उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। द अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। मतलब इनलैंड एमिग्रेशन के एक्ट के तहत कोई भी मतलब जो श्रमिक था, जो काम करने वाला वर्कर था, वो बिना किसी परमिशन के टी गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए टी गार्डन आ गया ना, मतलब भाई हो जाता है यार। After they heard the non-cooperation movement, thousands of the workers left the plantation and headed home। जब लोगों ने सुना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो थाउजेंड्स मतलब हजारों की मात्रा में ना वर्कर्स चल पड़े, हम भी जाएंगे, हम भी हिस्सा लेंगे भाई। तो जब वो लोग जा रहे थे
but unfortunately they never reached their destination and were caught by the police and brutally beaten up. लेकिन किस मतलब कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, किसी कारण से पकड़े गए पुलिस के द्वारा, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और पकड़े गए और बुरी तरह से मारे गए, मतलब मारे नहीं, मतलब पीटे गए. Each group interpreted the term स्वराज in their own ways. उनमें से अनेक लोगों ने स्वराज शब्द का अपने अपने तरीके में मतलब बताया. अब फिर से स्टार्ट होता है हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर. इसका मतलब है क्या है, चलिए इसमें पढ़ लेते हैं. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement because Mahatma Gandhi felt that it was turning violent. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कि अब ये एक वायलेंट का रूप ले रहा है, यानी कि हिंसा का रूप ले रहा है, और महात्मा गांधी तो ठहरे अहिंसावादी, वो कैसे सह सकते थे ये सब, तो इसीलिए शायद उन्होंने बंद कर दिया होगा. चलिए आगे पढ़ते हैं. Many leaders such as C.R. Das, Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return council politics. C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कई प्रसिद्ध नेताओं ने राजनीति में वापस के लिए बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया. ठीक है. Younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose praised for more radical mass education for full independence. मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने अधिक जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला. ठीक है. अब आ जाता है हमारा फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. अब भाई इसका क्या मतलब है भाई, समझा दो भाई, ये भी समझा रहा हूँ भाई, इतना मतलब रुको जरा, सबर करो, ये मीम सुना ही होगा ना, मतलब रुको जरा थोड़ा सा. तो चलो एंड तक बने रहो वीडियो के, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ उसमें. चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s, मतलब कि 1920 के दौरान भारतीय राजनीति में क्या क्या शेप, मतलब अलग अलग तरह के शेप आए, बदलाव आए, वो जानना है हमें इसमें. चलिए, The first effect was the worldwide economic depression and second was the falling agricultural prices. मतलब पहला इफेक्ट था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ गया था. वो डिस्प्रेशन मत सुन लेना, डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन. हाँ, तो डिप्रेशन हो गया था. सेकेंड इफेक्ट वाज फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस. मतलब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक मतलब क्या, पूंजी की खपत. मतलब शुरू में आपने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था. अगर नहीं देखा है पहला वीडियो तो पहले वो देख के आओ भाई, ये तो जा रही, तू तो देख के आना पहला वीडियो, जा. ओके, तो चलिए, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो उसमें भाई लड़ाई करोगे तो पैसे तो लगेंगे ना. अब बोलोगे लड़ाई में पैसे, अरे भाई बंदूक, गोली, कारतूस सब कुछ लग रहे हैं ना यार, तो उसके लिए कहाँ से, हवा में थोड़ी मतलब जा रहे हैं उड़ के जाके, मतलब उड़ेंगे भी कैसे यार, मतलब पेड़ में थोड़ी है जाके तोड़ लेंगे, तो इसके लिए तो पैसे लगते हैं ना. तो उस समय पैसे की खपत बहुत ज्यादा थी, टैक्सेस बढ़ गए थे, जिसके कारण लोगों को मतलब टैक्स जबरदस्ती लिया जा रहा था, वसूला जा रहा था, तो इसके कारण वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया. सेकंड था फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस. एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे. ये देखो, ये तो डबल बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं. एग्रीकल्चरल प्राइसेस कोलैप्स्ड आफ्टर 1930 एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन. एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी ना 1930 के दौरान बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हो चुके थे, टूट चुके थे. एग्रीकल्चरल गुड्स के डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसके कारण एक्सपोर्ट जो थे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो डिक्लाइन हो गया था. पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे रेवेन्यू. अब पीजेंट्स को डिफिकल्टी हो रही थी अपने हार्वेस्ट को बेचने में, बट उनसे तो रेवेन्यू तो लेना ही था, रेवेन्यू तो लेते ही, तो भाई जब दिख ही नहीं रहा तो रेवेन्यू कैसे देंगे बेचारे, तो उन्हें रेवेन्यू देने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी. इसी बीच में एक आदमी, मतलब एक चीज की एंट्री हो जाती है, वो है साइमन कमीशन. साइमन कमीशन क्या था भाई, देखो, the statutory commission was set up by the Tory government of Britain to look into the demands for the nationalists and suggest changes in the constitutional structure of India.
भाई क्या बोल रहा है ये देख लो भाई। ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा राष्ट्रवादियों की मांगों पर विचार करने के लिए भारत की संवैधानिक संरचना में बदलाव का सुझाव देने के लिए वैधानिक आयोग की स्थापना की गई, एक साइमन कमीशन की स्थापना की गई। वो साइमन कमीशन ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया कि जाओ भाई तुम वहां जाके देखो कि क्या क्या चीज की डिमांड हो रही है और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ मतलब कुछ क्या क्या होंगे वो देखो तुम जाकर। तो साइमन कमीशन कब आता है, इंडिया अराइव कब करता है, तो 1928 में। भाई ये डेट जो है ना इस चैप्टर में, मतलब हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर भाई, डेट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। 1 मार्क्स का विवेक क्वेश्चन बन सकता है आपका। द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कमीशन एज एंड इट वाज ग्रीटेड बाय स्लोगन गो बैक साइमन। अगर आपने शायद भगत सिंह का वो मूवी देखा होगा अजय देवगन वाला, शायद आपको ये सीन याद होगा, गो बैक साइमन का नारा लग रहा था स्टेशन पे। तो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना कभी छुट्टी मिला था, बोर्ड के एग्जाम के बाद देखना भाई, अभी मत देखना। तो गो बैक साइमन का नारा लगने लगा कि जब वो साइमन कमीशन जब आया था ना, तो सभी लोगों ने, मतलब कांग्रेस के जो नेता थे या कोई भी होंगे भाई, सब लोगों ने मतलब लगाना शुरू कर दिया भाई कि गो बैक साइमन वापस जाओ। तो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर इंडिया। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मतलब जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर सत्र ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया। यह, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। और ये डिक्लेयर भी कर दिया अपने मन से कि 26 जनवरी 1930 को हमारा क्या मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे, अपने मन से। लेकिन कब हुआ था, कोई बता, कमेंट में बता देना। अरे भाई पता होगा आप लोगों को, मजाक कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिपेंडेंस हो जाएगा हमारा देश, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब है हमारा द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब साथ ही साथ चलेगा हमारा नमक मार्च, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, जो कहो, 3 नाम आ जाते हैं, नमक मार्च, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें क्या बोल रहा है महात्मा गांधी choose salt as the powerful symbol or medium that could unite the nation as it consumed by all the sections of the society। तो महात्मा गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक या माध्यम के रूप में चुना जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था, क्योंकि इसका सेवन समाज के सभी वर्गों के द्वारा किया जाता था। ओके, ऑन द 31st जनवरी महात्मा गांधी सेंड अ लेटर to Viceroy Irwin starting 11 demands। 31 जनवरी 1930 को, यह भी 1 मार्क्स का विवेक क्वेश्चन बन सकता है कि कब महात्मा गांधी ने लेटर सेंड किया वाइसराय इरविन को। तो 31 मार्च 1930 को सेंड किया था। ओके, क्या सेंड, किस उसमें क्या था लेटर में, जिन्होंने महात्मा गांधी ने उसमें 11 मांगे लिखी थी, जिनमें एक डिमांड था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, एबॉलिश द साल्ट टैक्स। ये भी आपका 1 पॉइंट का बन सकता है विवेक क्वेश्चन की। जो डिमांड्स, जो 11 डिमांड्स थे, उनमें से एक मुख्य डिमांड क्या था, तो एबॉलिश द, अब भाई सारे मुख्य होंगे बट ज्यादा मुख्य ये था, सबसे ज्यादा पॉइंट मतलब महात्मा गांधी ने हाईलाइट करके सही लिखा होगा, एबॉलिश द साल्ट टैक्स। ओके, विच इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। The demands need to fulfilled by 11 March or else Congress would start a civil disobedience camp। मतलब ये भी कह देते हैं कि अगर बेटा 11 मार्च तक नहीं हमारे डिमांड को फुलफिल किया तुमने, तो हम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दें। अब ये सोच के लिखते हैं कि कहीं डर उड़ गया तो कहीं स्टार्ट कर दें, लेकिन आगे चलिए बताते हैं।
अब बीच में आ गया साल्ट मार्च, यानी कि नमक सत्याग्रह, नमक मार्च, दांडी मार्च। द फेमस salt march or Dandi march began by Mahatma Gandhi, accompanied by 78 of his trusted volunteers on March 12th 1930। अब ये भी डेट याद कर लेना, कितने वॉलंटियर्स थे? 78 वॉलंटियर्स। मतलब जो फेमस एक मतलब प्रसिद्ध नमक या दांडी मार्च 12 मार्च 1923 को महात्मा गांधी द्वारा 78 विश्वसनीय ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के द्वारा किया था उन्होंने 12 मार्च 1930 को। ठीक है। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। कहां से कहां तक हुआ था? गांधी जी के आश्रम साबरमती से और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। कितने माइल्स दूरी थी उसकी? 240 माइल। ये भी हो सकता है आपका एक पॉइंट बन सकता है। ओके। अब है द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। मतलब जो वॉलंटियर्स जो उनके साथ थे और महात्मा गांधी थे वो 24 दिन में ये 240 मील का जो रास्ता है वो तय करते हैं। प्रतिदिन 10 मील की दूरी वो चलते हैं। ठीक है। On 6th April 1930, Gandhi ji reached Dandi, a village in Gujarat, and broke the salt law by boiling water and manufacture salt। मतलब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, जो कि गुजरात का एक गांव है, और वहां पे पहुंचने के बाद पानी को खुद से बॉईल करके साल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और साल्ट लॉ को तोड़ते हैं। ब्रोक द सॉल्ट लॉ। Okay. Thus it began the civil disobedience movement। इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्या था भाई? फिर से पहले भी हम लोग पढ़ा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, वो तो कुछ अलग था, मतलब यहाँ पे कुछ अलग। वो पहले स्टार्ट हुआ था किसी और काम के लिए, ये स्टार्ट हुआ है नमक सत्याग्रह को लेकर के, जब उन लोगों के 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया था। कहा गया था ना इरविन को, जब उन्होंने लेटर भेजा था कि 11 डिमांड्स पूरे नहीं होंगे तो बेटा हम लोग सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे। नहीं किया होगा पूरा तो स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज पीपल वेर नाउ आस्क्ड only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 but 222 but also the brick colonial laws। मतलब ये जो मतलब नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बिल्कुल अलग था। नॉन कॉपरेशन में क्या था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो ब्रिटिश के जो सामान हैं, गुड्स हैं, जो नौकरियां जो मिल रही हैं तुम्हें, उसे बॉयकॉट करो, उसे छोड़ दो। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या कहा उन्होंने कि तुम उनके कामों को छोड़ो तो छोड़ो जरूर, उनके गुड्स को छोड़ो दो, लेकिन अब उनके टैक्सेस को भी देना बंद कर दो और उनके द्वारा लगाए गए सारे लॉज को भी तोड़ दो। वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ वेयर इट्स मेन फीचर्स। फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दो। The movement spread across the world and salt law was broken in different parts of the country। अब गांधी जी ने इस साल्ट लॉ को तोड़ दिया तो भाई सबको ही तोड़ेंगे, सब कोई, मतलब ये जो बात थी ना पूरे विश्व में फैल गई, वर्ल्ड में, कि गांधी जी ने तोड़ा हम भी तोड़ते हैं साल्ट लॉ। सब लोगों ने साल्ट लॉ तोड़ना शुरू कर दिया। As the movement spread, foreign clothes were boycotted, peasants refused to pay revenue and many places forest law was violated। मतलब धीरे धीरे ये जो मतलब मूवमेंट था ना बहुत तेजी से फैलने लगा। फॉरेन क्लॉथ्स बॉयकॉट होने लगे, पीजेंट जो थे मतलब किसान थे वो रिवेन्यू देना बंद कर देते हैं, बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट लॉ तोड़े जाते हैं। इन अप्रैल 1930 खान अब्दुल गफार खान डेब्यूट डिस्पाइट ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि 1930 में, अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफार खान को ना अरेस्ट कर लिया जाता है।
तो महात्मा गांधी was arrested a month later which led to attacks to all structures that symbolize British rule. एक महीने बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण ब्रिटिश शासन का प्रतीक सभी संरचनाओं पर हमला हुआ। मतलब ये कह के कर लिया जाता है कि आपने जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था ना, इसके कारण ये हमारे मतलब दंगा फसाद हुआ और इन लोगों ने हमारे दफ्तर को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बोल करके गांधी जी को और खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। ब्रिटिश शासन ने क्रूर दमन की नीति अपनाई, मतलब एक कठोर आदमी, मतलब कठोर बनने की नीति अपनाई ताकि गांधी जी को अंदर कर सके, क्योंकि वो जानते थे अगर गांधी जी रहे तो एक सबको एकजुट कर लेंगे और हमें भगा देंगे अंग्रेजों को। बाय विटनेसिंग द हॉरिफिक सिचुएशन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। इन सब सिचुएशन को देख करके महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि अब इस जो सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है इसे हमें बंद कर देना चाहिए। ओके, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। अब भाई ये क्या था भाई, क्या पढ़ दिया? अरे भाई बता रहा हूँ, बता। गांधी इरविन पैक्ट ये है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। ऑन 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन द वाइसराय साइंड अ पैक्ट विद गांधी जी। मतलब 5 मार्च 1931 को वाइसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी पॉइंट 2 है, गांधी जी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। मतलब गांधी जी इरविन समझौता, गांधी जी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति दी, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गांधी जी को इरविन ने, लेकिन वो पहले मतलब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते। ठीक है, तो फिर दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड। मतलब गांधी जी जो है ना, मतलब लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो रिटर्न डिसअपॉइंटेड होकर रिटर्न हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं वो भी बताता हूँ। अब देखो, डिसअपॉइंट होकर वापस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहां पे गांधी जी को बुलाया तो जाता ही है, साथ ही साथ B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी बुलाया जाता है वहां पे। वो भी वहां पे एक पैक्ट साइन करने के लिए आए होते हैं। ठीक है, उनकी बात होती है वहां पे, मतलब कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना भारत में, उनको भी एक सीट, रिजर्व सीट मिलने चाहिए, वो इसको लेकर के वहां पहुंचते हैं। तो गांधी जी ना, मतलब उनसे थोड़ा उस समय मतलब बनती नहीं थी उनकी, तो गांधी जी को लगा कि मतलब ये हो रहा है, इसलिए वो वापस वहां से चले आते हैं। गांधी जी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, बट किसी कारण फिर से वो बंद हो जाता है। अब है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब ये क्या है भाई, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, उन लोगों ने क्या देखा इस मूवमेंट में? रिच पीजेंट्स, मतलब जो अमीर किसान थे, उन्होंने क्या देखा? चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से रिच पीजेंट्स ने क्या देख लिया भाई? तो द पाटीदार्स ऑफ रेव गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर एक्टिव इन दिस मूवमेंट। मतलब रेव गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे, बहुत ही मतलब एक्टिव थे इस मूवमेंट में। द प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स they were very hard hit by to the trade depression and falling prices। मतलब जो व्यापारिक जो फसलों के उत्पादक थे, जो उत्पादन करते थे, व्यापार मंदी और गिरती कीमतों को बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इन सबको देख करके मूवमेंट के दौरान। कैश इनकम disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand। तो नगद आय गायब हो गई, जो मतलब छोटा मोटा पैसा आ रहा था वो गायब हो गया। उन्हें सरकार की राजस्व मांग का भुगतान करना असंभव लगने लगा, मतलब जो रेवेन्यू था वो देने में प्रॉब्लम होने लगा। The refusal of government to reduce the revenue demand led to widespread resentment। हाँ, तो राजस्व मांग को कम करने के लिए कम करने से सरकार ने इनकार कर दिया। जब इन लोगों ने रिफ्यूजल, मतलब एक गवर्नमेंट को बोला कि थोड़ा सा रेवेन्यू कम कर दीजिए, लेकिन सरकार ने सरकार ने इनकार कर दिया कि हम नहीं बंद करेंगे, और इसके कारण आक्रोश फैल गया, मतलब गुस्से, मतलब है ना भगदड़, मतलब
मारपीट फैलना शुरू हो गया। फिर द रिच पीजेंट्स बिकेम enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at time forcing reluctant members to participate in the boycott programs। मतलब ये धनी किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन से उत्साही समर्थक बन गए। उन्होंने अपने समुदायों को संगठित किया और कभी-कभी अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर किया। जो इच्छा नहीं कर रहा था उनको भी मजबूर किया था कि आओ भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो। For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उनके लिए स्वराज की लड़ाई उच्च राजस्व के खिलाफ संघर्ष थी, ठीक है। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being received। मतलब आप समझ में आया क्यों फिर से मतलब हुआ था 1931 में सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, इसलिए कि रिवेन्यू को बंद कर दिया, मतलब रिवेन्यू को कम करना चाहिए लेकिन कम होता नहीं है, फिर भी सिविल डिसोबीडियंस बंद कर दिया जाता है। इसके कारण भी मतलब एक जो है कि देखने को मिलता है 100 द मूवमेंट पार्टिसिपेंट्स, एक मूवमेंट मतलब 100 करते हैं, देखते हैं क्या क्या। अब है यहाँ पे when the movement was restarted in 1932 many of them refused to participate। अब जब 1932 में स्टार्ट किया गया मूवमेंट तो बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो जान चुके थे 1931 में जिस तरह बंद हुआ इस बार भी वैसे ही बंद होने वाला। अब पुअर पीजेंट्स ने क्या देखा, पुअर पीजेंट्स ने इस मूवमेंट के दौरान क्या देखा, तो अब देखिए क्या देखा पुअर पीजेंट्स ने। द पुअर पीजेंटली वेर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। तो गरीब किसान केवल राजस्व मांग को कम करने में रुचि नहीं रखते थे। Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords। उनमें से कई छोटे किराएदार किसान जो थे, जो जमींदारों से किराए पर जमीन लेकर के उन पे खेती करते थे। ओके, उसके बाद as the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent। तो जैसे जैसे मंदी जारी रही और नगद आय कम होती गई, छोटे किराएदारों को अपना किराया चुकाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब वो बड़े बड़े क्या कहते हैं जमींदारों के यहाँ काम करते थे तो उनके लिए भी उनको रेंट पे करना पड़ता था, उनके जमीन पे जब वो काम करते थे तो उन्हें भी दिक्कत होने लगी रेंट पे करने में। They wanted to unpaid rent to the landlord to be remitted and join a variety of radical movement often led by the socialist and communities। मतलब क्या बोल रहा है, वे चाहते थे कि मकान मालिक मतलब जमीन का जो मालिक है, वो मकान मालिक जमीन का मालिक जो है कि वो अब इतनी किराया माफ कर दिया जाए, मतलब जो किराया है ना उसे मतलब जो खेत का किराया है उसे माफ कर दिया जाए। वे लेकिन वो माफ नहीं करते हैं, तो इसके नहीं का माफ करते हैं तो वो लोग एक कम्युनिटी बना करके उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट कट्टरपंथी आंदोलन जिसे कहते हैं ना, उसमें शामिल हो जाते हैं, जिनका नेतृत्व अक्सर किया जाता था। ठीक है, अब है apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress were unwilling to support no rent campings in most places। अमीर किसानों को जिम्मेदारियों को परेशान करने वाले मुद्दे को उठाने से के डर से कांग्रेस अधिकांश स्थानों पर लगान नहीं अभियान का समर्थन करने के तैयार नहीं थी। कहीं पे मतलब इस तरह को देख करके ना कांग्रेस भी वहां पे कहते हैं ना मतलब अभियान करने के तैयार नहीं थी। The relationship between poor peasants and the Congress remained uncertain। गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित रहे। अब है बिजनेस क्लास। अब बिजनेस भाई प्लेन का बिजनेस क्लास मत समझ लेना, बिजनेस क्लास और थर्ड क्लास ये मत समझ लेना। ओके, इसमें है हमारा आफ्टर द वॉर द ह्यूज प्रॉफिट्स वे रिड्यूस्ड, वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। मतलब युद्ध के बाद मतलब विश्व युद्ध के बाद उनका भारी मुनाफा कम हो गया, विदेशी वस्तुओं के आयात में सुरक्षा चाहते थे इस वजह से। To organize business interests, the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of
the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927 was formed. मतलब कहते हैं ना, मतलब एक व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया गया। ठीक है, द इंडस्ट्री कब किया गया भाई, ये डेट याद रखना, 1920 में किया गया। ये 1927 में FICCI का कमर्शियल इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस का कब किया गया, 1920 में, और FICCI का 1927 में। ओके, द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. तो उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जब इससे पहली बार शुरू किया गया था। Some of the industrial workers did participate in the civil disobedience movement in 1930 and 1922. 1932 railway workers and dock workers were on strike. कभी कभी गलती हो जाती है भाई, कोई बात नहीं, इंसान है, हम ही से गलती होगी। ठीक है, तो कुछ उद्योगपति श्रमिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1930 और 1932 में रेलवे कर्मचारियों और गोदी कर्मचारी हड़ताल पर थे। डॉक वर्कर्स, गोदी कर्मचारी। The spread of militant activities, worries of prolonged business distributions, growing influence of socialism amongst the young Congress forced them not to join the movement. मतलब उग्रवादी गतिविधियों का, अब भाई जरूरी नहीं है कि सब कोई अब सिविल डिसोबीडियंस के फेवर में ही रहेंगे, कुछ उसके खिलाफ भी रहेंगे, अपोज करेंगे उसको। तो उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार लंबे समय तक व्यापार में व्यवधान की चिंता थी। युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया। ओके, अब है हमारा वुमेन्स मतलब औरत, यानी कि अब मतलब औरत का क्या योगदान रहा हमारे इस मूवमेंट में, हमारे इस देश को आजाद कराने में, तो बताते हैं यहाँ पे, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। मतलब ऐसा ही एक समूह के अछूत थे जिन्होंने 1930 के दशक के आसपास से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया। ठीक है, women participate in protest marches, manufactured salt and picked foreign clothes and liquor shops. मतलब लंबे समय तक कांग्रेस के सनातनियों, रूढ़िवादी, उच्च जाति के हिंदुओं के women participate in protest marches, manufactured salt and picked foreign clothes and liquor shop. ओके, क्या बोला जा रहा है भाई यहाँ पे? महिलाओं ने विरोध मार्च में भाग लिया, नमक बनाया और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना दिया। ओके, कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस महिलाओं को संगठन के भीतर किसी भी अधिकार वाले पद पर रहने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक था। मतलब कांग्रेस जो था ना, वो वुमेन्स को किसी भी पोजीशन पे बैठने के लिए नहीं दे रहा था। ओके, अब है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब लिमिट्स क्या क्या थे सिविल डिसोबीडियंस के? अब वन सच ग्रुप वाज नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड द 1930s had begun to call themselves दलित और ऑपरेस्ट। मतलब एक ऐसा ही एक समूह था, देश के अछूत थे, जिन्होंने 1930 के दशक के आसपास से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया था। For the long Congress that Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, conservatives, high caste Hindus. मतलब कांग्रेस जो थी ना, वो दलित को इग्नोर कर रहे थे कि उन्हें वो डर लगता था कि हमारे में जो बड़े बड़े कास्ट के हिंदूज जो हैं, अगर दलित आ जाते हैं तो ये लोग चले जाएंगे।
तो इस वजह से वो लोग मतलब इन्हें इग्नोर कर रहे थे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबल वेर नॉट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी ने घोषणा की यदि स्वराज लाना है, अगर स्वराज लाना है तो अगर अनटचेबल्स को अगर तुम एलिमिनेट करोगे तो स्वराज नहीं ला पाओगे। इसीलिए ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसीलिए वो अनटचेबल जो दलित थे उन्हें वो अनटचेबल या दलित के नाम से नहीं पुकारते थे, वो पुकारते थे हरिजन के नाम से, यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गॉड के बच्चे मतलब भगवान के बच्चे, इनको इन रूप में इन नाम से जानते थे। He organized a satyagraha for untouchables, but they were keen on a different political situation to the problems of community. They demand reserved seat in educational institution and separate electorate. उन्होंने हरिजन्स के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, लेकिन वे अछूत थे। समुदाय की समस्याओं के लिए एक अलग राजनीतिक समाधान के लिए उत्सुक थे। उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की मांग की, संस्थाएं और एक अलग निर्वाचन क्षेत्र। भाई ये लोग थे ना, ये लोग भी बड़े होशियार थे, सब चीज में रिजर्व सीट ही मांग रहे थे, तो थोड़ा सा अलग लग रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द लीडर ऑफ दलित, formed an association in 1930 called the Depressed Class Association। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलित के लिए 1930 में एक एसोसिएशन बनाते हैं। ये डेट याद रखना है, कब बनाया था उन्होंने एसोसिएशन का नाम क्या था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। अब है he clashed the Gandhi जी at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit। वही है बस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसी कारण से गांधी जी वापस लौट के चले आए थे। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 बिटवीन द गांधी जी एंड B.R. Ambedkar 1932 gave the depressed class later to be known as the scheduled caste reserved seat in provincial and central councils but were voted by general electorate। मतलब अब क्या था, मतलब एक पूना पैक्ट जो है ना 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में किया जाता है, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स के लिए सेंट्रल काउंसिल्स में देने का वादा करते हैं गांधी जी। मतलब बोलते हैं कि आज़ादी जब मिल जाएगी ना हम हमारे देश को, तो हम आप लोगों को एक अलग सीट देंगे, हम अपने संविधान में और अपने इस राजनीति में सब कुछ में एक अलग से मतलब सीट देंगे आपको। After the decline of non-cooperation movement, Muslims felt alienated from Congress due to the which relationship between Hindus and Muslim votes। मतलब अब जो मतलब असहयोग आंदोलन के पतन के बाद मुसलमानों को कांग्रेस से अलगाव महसूस हुआ, जिसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंध खराब हो गए। ओके, द लीडर मुस्लिम लीग, मतलब जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, wanted a reserved seat for Muslim in Central Assembly and representation in proportion to population in Muslim domination provinces। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की। मुस्लिम बहुत प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व चाहते थे। Large sections of Muslim did not participate in civil disobedience movement। लार्ज स्केल में जो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे ना, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस मूवमेंट में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इससे आगे का पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, और फिर कंक्लूजन है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ये बस यही है, मतलब चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स ये था कि मतलब इसमें आप लोगों को एकजुट कैसे करें, मतलब एक अलग से था कि सॉन्ग्स लिखे जाए, नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने ऐसे कह दिया। मतलब बताता हूँ शॉर्ट में कि अब सिर्फ आंदोलन करके ही लोगों को एक नहीं किया जा सकता है, मतलब पोस्टर्स बनाना था, गाने बनाने थे उस टाइप के, जिससे सुन के लोगों के सही में मोटिवेशन, मतलब एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाए, वो देश को अपने देश के लड़ने के लिए एकजुट हो जाए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने एक इमेज बनाया 1870 में, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, उन्होंने ही भारत माता का चित्र बनाया उन्होंने 1870 में। और अविंद्रनाथ टैगोर ने जो कि फेमस इमेज
पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। मतलब बनाया था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन उनमें उसको पेंट किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बस इस मूवमेंट इसमें इतना ही था। फिर आगे in late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages, gathered folk songs and legends. अब 19th century में इंडिया नेशनलिस्ट began recording folk tales, मतलब अब जो मतलब लेट मतलब 19वीं शताब्दी में इंडिया के लोग जो है ना फॉल्क टेल्स, फोक डांस को, मतलब फोक सॉन्ग्स को, लेजेंड्स के जीवनी को रिकॉर्ड करने लगे। और ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट द बंगाल ट्राइकलर फ्लैग एंड रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन्ड व्हिच हैड 8 lotus representing 8 provinces of British India and crescent moon representing Hindu and Muslim। अब बताया जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया जो कि रेड, ग्रीन और येलो कलर में था, जिसमें 8 लोटस बने हुए थे रिप्रेजेंटेटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 8 प्रोविंस को इंडिकेट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया थे। एंड सरसेंट मून जो था उसमें बना हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक था, वो जो हिंदू और मुस्लिम को दर्शा रहा था। बाय 1931 गांधी जी हैड डिजाइन्ड अ स्वराज फ्लैग। इट वाज again a tricolor red, green and white has a snapping wheel in the center। फिर गांधी जी ने 1921 में अपना एक झंडा तैयार किया, स्वराज फ्लैग जिसका नाम था, जो कि लाल, हरा और उजले रंग से बना हुआ था, जिसके बीच में एक चरखा बना हुआ था, आपने देखा होगा। और ये है कंक्लूजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन जरूर दबाना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया, लगभग 1 घंटा से कुछ कम ही, मतलब 50 मिनट्स तो टच कर ही जाएगा।